Hello, my passionate speaking learner. You know, we are going to study about gerund. Gerund plays a very important role in speaking. Gerund is ing word. We form it adding ing in a word. For example, walk plus ing, walking. Drive plus ing, driving. Clean plus ing, cleaning. My dear students, gerund looks like a verb, but it functions as a noun. My dears, जैसा कि मैंने बताया कि जेरंड दिखता तो वर्ब की तरह है बट काम करता है नाउन की तरह। तो इंग्लिश में नाउन के जो काम होते हैं वही जेरंड के भी काम होते हैं। अब हम चलते हैं जेरंड के यूज देखते हैं कि जेरंड कहाँ कहाँ यूज करते हैं एक सेंटेंस में, या हम जब बात करते हैं कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम कहाँ कहाँ लगा करके उसको बोलेंगे और कैसी उसकी मीनिंग निकलेगी। My dears, I want to give you a very important point. Gerund does not act as a verb. I am talking to you. Here, talking is not a gerund. Talking is used as a present continuous tense. They have been studying really hard. Here, studying is not a gerund. Here, studying is present perfect continuous tense verb. Gerund is not an adjective. I read an interesting book. Here, interesting is not a gerund. Interesting is an adjective. My students, as I told you, a gerund functions as a noun. That means in English a noun work as a subject. That means a gerund also acts as a subject. Cleaning is a hard work. Walking to work every day has really helped my back problem. Driving without a seat belt is dangerous. In these sentences, walking, cleaning, driving, these all act as a subject. Smoking has many negative effects on your health. Smoking has many negative effects on your health. Singing is my hobby. Cajoling a girl could be good or bad for you. Cooking is my mother's hobby. Cooking, speaking English every day really boosts your confidence level. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेरंड एक नाउन की तरह काम करता है और आपको मालूम होना चाहिए कि जेरंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की तरह इसको यूज कर रहे हैं। और हमेशा एक बात ही हमेशा याद रखिए कि ये जो जेरंड है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात को, जेरंड जब सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो ये हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट सेकेंड यूज ऑफ द जेरंड। अब हम जेरंड के दूसरे यूज के बारे में आपको बताते हैं कि जेरंड ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको बताया कि ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल। डू यू लाइक रीडिंग पोएट्री? यू मस्ट स्टॉप मिसबिहेविंग विद योर पेरेंट्स। You must stop misbehaving with your parents. You should start focusing on your work properly. I can't stand seeing you sad. आपको हम कुछ वर्ब दे रहे हैं जिनके बाद
जेरेंड को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे लव, हेट, प्रेफर, कंटिन्यू, प्रपोज, स्टार्ट, बिगिन, can't stand, can't bear, and some other more list of the verb. After that we use gerund as it is follow, as you can study it. My dear language learners, now we are going to study up gerund as a object of a preposition. आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बगल में जब जेरेंड यूज होता है, जब हम प्रीपोजिशन के बगल में ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो उसको हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। जब प्रीपोजिशन के बगल में कोई नाउन होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हम यूज करते हैं जेरेंड को प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। फॉर एग्जाम्पल, she is fond of dancing. I am fond of giving motivational lecture. She prevented me from getting hurt. Neha is tired of waiting. They have shown interest in debating with me. She left without saying a word. I am extremely sorry for being late. My dears, now we are going to study up another use of gerund. हम चलते हैं जेरेंड को अब कंप्लीमेंट की तरह यूज करना है। कंप्लीमेंट किसको बोलते हैं? जब हम लिंकिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, या लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, इसको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। जैसे हम उसको नाउन की तरह यूज करें बाद में, जैसे हमने कहा कि ही इज अ डॉक्टर, राम इज एन इंजीनियर, माई फादर इज अ फार्मर, आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर। तो यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर है या फार्मर है या जो डॉक्टर हैं, ये कंप्लीमेंट बोलते हैं इसको। वो इधर बताता है सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट उधर होता है तो सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करता है कि वो क्या चीज़ है, तो इसको एक कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम जेरेंड को भी एक कंप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर के बाद भी। फॉर एग्जाम्पल, माई हॉबी इज टीचिंग। His passion is delivering good lecture. What I don't like is wasting time. My hobby is drawing. My hobby is teaching. My hobby is singing. His passion is gambling. Now we are going to use other use of gerund. अब हम gerund को यूज करने जा रहे हैं as a, अब हम gerund को possessive adjective के बाद, यानी possessive pronoun जिसको बोलते हैं, my, your, his, her, their, our, इसके बाद एक नाउन आता है। तो नाउन, gerund भी नाउन की तरह यूज होते हैं, तो हम इसके बाद जेरेंड को यूज करेंगे। तो चलते हैं देखने, और साथ में हम देखेंगे कि एपस्ट्रॉफ के बाद भी हम यूज करते हैं, जो कि नाउन के ऊपर एक एपस्ट्रॉफ लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर एस लगाते हैं, जैसे मदर्स लव होता है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। मदर्स के बाद हम एक जेरेंड लगाएंगे, या फ्रेंड्स के बाद एक हम जेरेंड लगाएंगे। थोड़ा यूज करने जा रहे हैं हम सैंपल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू दैट बॉय। I love your singing. I postponed my friends arriving Delhi abroad. I postponed my friends going abroad. Do you like my teaching style? My dear learners,
इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जब उन्हें कुछ खास कुछ स्पेशल काम को बताने होते हैं तो वो जेरंड का यूज करते हैं, यानी कि उस वर्ब के बाद जो है हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लिस्ट में वर्ब देख रहे हैं आप, ये सारे कुछ स्पेशल काम को जब डिफाइन करना होता है, बताने होते हैं, तो वो अपने साथ में जेरंड लेके चलते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल इस बेस पे बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आई लव टीचिंग, शी लव्स डांसिंग, दे लव ड्राइंग। तो कुछ वर्ब होते हैं जिनके बाद में जेरंड का यूज करते हैं। तो my friends avoid talking too much, she loves going out, she enjoys meeting new persons, I like teaching you, she continued talking on same issue, whenever I go to meet her she starts making tea. Goodbye for now.